welcome to my channel. So today we are going to discuss the word meaning and the summary of chapter 3rd of English supplementary book. The title of our chapter is The Midnight Visitor and it is written by Robert Arthur. First of all, I will discuss the word meaning and summary in English. Later on, I will discuss the summary in Hindi. Okay, so let's start with the word meanings. So the first word is passably, which means just well enough, terribly well. Second one is espionage, which means spying. Third one is sloppy, which means carelessly dressed. Fourth one is prosaic, which means ordinary. Fifth one is silly, which means in a high pitch. Sixth one is romantic, which means imagination having a fantastic view of reality. One is chuckled, which means laugh quietly without opening his mouth. Eighth one is missiles, which means weapons directed by remote control. Ninth one is witched, which means spoke breathingly, noisily and heavily. 10th one is authentic, which means very honest. 11th one is twistle, which means excitement. 12th one is spy, which means secret agent. 13th one is let down, which means put down. 14th one is scarcely, which means very rarely. 15th one is accent, which means pronunciation. 16th one is passably, which means moderately. 17th one is slender, which means thin. 18th one is countenance, which means facts. 19th one is menacing, which means dangerous. 20th one is breezy, which means breathing with difficulties. So now let's come to the summary part. Ausable is a fat man who can passably speak German and French language. He is a secret agent who lives in a gloomy French hotel. Fleur, who has a spy, was surprised to see a fat man, a fat agent. One night, Ausable was expecting some important papers for which many men and women have risked their life. When both of them reached at the room, Ausable closed the door and switched on the light. Then they saw a man named Fox, who was holding an automatic pistol in his hands. Max was slender or less than tall, that suggested slightly the crafty pointed countenance of a fox. Max threatened them to give those papers. Ausable used a trick to come out from this dangerous situation. He explained the story about the non-existent balcony, which Max believed to be true. Ausable said that it is due to the balcony that someone entered his room second time. After some time, there was knocking at the door. Ausable again made fool of Max by saying it was the police. In order to run away to avoid to be caught by police, Max jumps into the non-existent balcony and falls down, injured himself. This is how Ausable saved himself. Now let's start the Hindi version of our summary. So, Ausable is a fat man who can passably speak German and French language. So, यहाँ पे हमने पढ़ना है Ausable के बारे में. So, यहाँ पे कहता है कि Ausable जो है एक मोटा इंसान होता है जो कि बहुत ही अच्छे से जर्मन और फ्रेंच दोनों ही लैंग्वेज को बोल सकता है. अगर मेरी बात करूँ मैं तो मैं भी दो लैंग्वेज को अच्छे से बोल सकती हूँ. फर्स्ट वन इज़ इंग्लिश और दूसरा है हिंदी, है ना. तो आप लोग में से जो भी मेरे वीडियो देख रहे होंगे उनमें से काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस के बारे में पता होगा. सो लाइकवाइज ऑसिबल जो इंसान होता है वो भी दो लैंग्वेजेस के बारे में बहुत अच्छे से जानता है. वो है जर्मन और फ्रेंच. ही इज़ अ सीक्रेट एजेंट हु लिव्स इन अ ग्लोमी फ्रेंच होटल. सो यहाँ पे कहता है कि जो ऑसिबल है वो एक सीक्रेट एजेंट होता है अगर उसकी ऑक्यूपेशन की बात की जाए तो, और
वो रहता है एक फ्रेंच के होटल में। अगर हमारी बात करें तो हम लोग घर पे रहते हैं क्योंकि हमें कोई काम धंधा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग घर पे रहते हैं क्योंकि हमारे ये परमानेंट एड्रेस होता है। पर जो सीक्रेट एजेंट्स होती हैं वो ऑल ओवर द सिटीज़ घूमते रहती हैं अपने केस को सॉल्व करने के लिए, तो उनका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं होता। सो इसलिए वो छोटे छोटे होटल्स में रहा करती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो ये सीक्रेट एजेंट ऑसिबल है वो एक फ्रेंच होटल में रहा करता था। फ्लोवर हु वॉज अ स्पाई वॉज सरप्राइज टू सी अ फैट एजेंट। फ्लोवर जो था वो एक स्पाई था और वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुआ जब वो ऑसिबल से मिला। तो क्यों सरप्राइज था? क्योंकि ऑसिबल काफ़ी ज़्यादा मोटा था। और अगर हम लोग एक सीक्रेट एजेंट्स की बात करें तो कभी भी अगर हम लोग सीक्रेट एजेंट के बारे में सोचते हैं तो इवन हमने मूवीज़ में देखा है या फिर ऐसे भी सुना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसा लगता है कि जो सीक्रेट एजेंट होते होंगे वो काफ़ी ज़्यादा फिट एंड फाइन होते होंगे, क्योंकि उन्हें क्या बोलते हैं, अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता है, छिप के रहना पड़ता है ताकि वो इन्फॉर्मेशन निकाल सके। वो मे बी ग्लासेस पहनते होंगे ब्लैक वाले और अपने साथ पिस्टल रखते होंगे अपनी सेफ्टी के लिए। ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं। तो इन द सेम वे फ्लावर भी एक इंसान होता है और उसको भी यही सारी जो इमेजिनेशन है वो भी उसके माइंड में होती हैं एक स्पाई को लेकर, लेकिन स्पाई कह रहे एक सीक्रेट एजेंट्स को लेकर। बट फ्लावर जो है वो मिलकर ऑसिबल से काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि ऑसिबल मोटा होता है। One night, Oswald was expecting some important papers for which many men and women have risked their life. So यहाँ पे कहता है कि एक रात की बात है, ऑसिबल जो है वो वेट कर रहा था कुछ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेपर्स का, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाला है, अपनी जान की कुर्बानी देकर उस पेपर को बचा कर रखा है, यानी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेपर है वो। When both of them reached the room, Oswald closed the door and switched on the light. Then they saw a man named Max who was holding an automatic pistol in his hands. So यहाँ पे कहता है कि जब वो दोनों यानी ऑसिबल और जब फ्लावर दोनों अपने होटल के कमरे में पहुँचते हैं और जैसे ही ऑसिबल डोर को क्लोज करके लाइट को ओपन करता है तो वो देखते हैं कि एक मैन होता है जिसका नाम क्या है, मैक्स, और वो एक ऑटोमेटिक पिस्टल लिए हुए उन दोनों के सामने खड़ा होता है। Max was slender or less than tall, that suggested slightly the crafty pointed countenance of a fox. So यहाँ पे मैक्स के बारे में बताया जा रहा है कि मैक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं था, छोटा ही था, इंसान था, छोटे कद वाला इंसान था और उसकी जो नाक थी वो काफ़ी ज़्यादा क्राफ्टी थी, जिसकी वजह से वो एकदम एक फॉक्स की तरह लग रहा था। मैक्स threatened them to give those papers. मैक्स ने क्या किया, पिस्तौल दिखाते हुए ऑसिबल और फ्लावर से बोला कि तुम दोनों मुझे वो पेपर्स दे दो जो कि तुम्हारे पास तुमको जो मिला है, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ऑसिबल यूज अ ट्रिक टू कम आउट फ्रॉम दिस डेंजरस सिचुएशन। इस सिचुएशन में जहाँ सब लोग शायद ब्लैंक हो जाएं, उस सिचुएशन में ऑसिबल की माइंड में एक ट्रिक आया और उसने तुरंत उस ट्रिक को इम्प्लीमेंट किया। वो ट्रिक क्या था? He explained the story about the non-existent balcony, which Max believed to be true. उसने जो है ऑसिबल ने जो है वो एक नॉन एग्जिस्टेड बालकनी यानी एक बालकनी जो कि कभी उसकी कभी उसके होटल में थी ही नहीं, उसके बारे में जो है मैक्स को बताया। और उसने कहा कि ये दूसरी बार है कि कोई इंसान उस बालकनी के थ्रू मेरे कमरे में आया है। मैंने कितनी बार होटल के मैनेजमेंट को ये कंप्लेन भी किया, मतलब इसके पहले बार में भी कंप्लेन किया था कि मेरे रूम में कोई आ गया है उस बालकनी के थ्रू, और फिर देखो एक दूसरे बार भी तुम यहाँ पे उसी बालकनी के थ्रू आ गए। जिस पे जो है वो मैक्स बोलता है कि उसे तो बालकनी के बारे में पता ही नहीं था, वो तो डुप्लीकेट चाबी बनाकर आया है इसके रूम में। तो उसने बोला कि अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे रूम के बगल में बालकनी है तो मैं बालकनी से ही आता, मैं इतना रिस्क लेकर मेन गेट को खोलकर नहीं आता अंदर, ठीक है, क्योंकि अगर वो मेन गेट से आता तो काफ़ी लोग उसको देखें या सीसीटीवी कैमरा में उसका फ़ोटो आ जाता। होटल्स में तो सीसीटीवी कैमरा होते ही हैं। तो उसने बोला कि अगर उसे बालकनी के बारे में पता होता तो वो बैक साइड से आता तो शायद उसका फ़ोटो कैप्चर नहीं होता। वैसे भी उसने काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन रखा था कि वो कभी पकड़ में ना आए, पर फिर भी वो बोलता है कि उसको बालकनी के बारे में अगर पता होता तो बालकनी के थ्रू ही जो है ऑसिबल के रूम में आता।
Osibel said that it is due to balcony that someone entered his room second time. After some time, ये मैंने explain किया अभी. After some time there was knocking at the door. और ऐसा कहने के कुछ ही देर बाद क्या होता है कि Osibel के डोर पे knocking होता है. knocking का मतलब कोई उस डोर को जोर जोर से खटखटाता है. अब अगर एक एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं अपना. जब मैं एक बार रूम में थी तो मैंने क्या किया, गुस्से में आके अंदर से रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया. मैंने बंद तो कर दिया बट मुझे खोलने ही नहीं आता था और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी. फिर मम्मी आए, पापा आए और फिर पता नहीं शायद दूसरे की वाले को बुलाया गया जिसने उसको तोड़ा. और फिर जब टूटा फिर मेरा रो रो के हालत ख़राब हो गया था. तो और फिर जब टूटा तो फिर मैं फिर बाहर आई. उसके बाद से आज तक कभी भी हम डोर क्लोज़ नहीं करते हैं. तो ऐसा ही कुछ हुआ था Osibel के साथ. Osibel ने जानबूझ के बंद तो किया था लेकिन वो चाहकर भी दरवाज़ा नहीं खोल सकता था. क्यों नहीं खोल सकता था? क्योंकि उसके सामने एक पिस्तौलधारी इंसान खड़ा था. और जैसे ही उसके डोर पे नॉकिंग होता है यानी जैसे ही कोई उसके डोर को खटखटाता है तो Osibel अगेन मेक फुल ऑफ मैक्स बाय सेइंग दैट इट वाज द पुलिस. तो वो Osibel ने झूठ बोल दिया कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर्स था तो इसलिए मैंने पहले से ही पुलिस को खबर कर दी थी कि आप मेरे पास आके इन पेपर्स को ले लेना या इन पेपर्स को प्रोटेक्ट करना. तो ये ज़रूर ही पुलिस होगी जो दरवाजे को खटखटा रही है. और ये जो है मैक्स को फूल बनाने के लिए कहा, यानी सच में वहाँ पे पुलिस नहीं थी, बस मैक्स से बचने के लिए Osibel ने ऐसा कह दिया था. इन ऑर्डर टू रन अवे टू अवॉइड टू बी कॉट बाय द पुलिस ही जम्प्स इनटू द नॉन एग्जिस्टेड बालकनी एंड फॉल डाउन. सो यहाँ पे कहता है कि अब पुलिस का नाम सुनते ही जो मैक्स होता है वो घबरा जाता है और पकड़ में नहीं आने के लिए क्या करता है कि वो बालकनी की तरफ कूद जाता है. जिस तरफ Osibel ने बताया था कि इस तरफ बालकनी है उसी तरफ जो मैक्स है वो चला जाता है और वहाँ से जंप लगा देता है कि वहाँ पे बालकनी है, मैं बालकनी से फिर नीचे जंप करके भाग जाऊँगा. बट वहाँ पे तो कोई बालकनी थी ही नहीं. तो क्या होता है कि जैसे ही वो जंप करता है बालकनी में तो नीचे गिर जाता है और खुद को इंजर्ड कर लेता है, खुद को क्या बोलते हैं, जख्मी कर लेता है. सो दिस इज हाउ Osibel सेव हिमसेल्फ. और इसी तरह Osibel ने अपने आप को तो बचाया ही साथ फ्लोवर को भी बचाया और उन इम्पॉर्टेंट पेपर्स को भी बचाया. सो ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. ये तो इसका समरी है. मैं इसकी एक्सप्लेनेशन, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन काफ़ी जल्दी दूंगी, आप चैनल पे जाके देख सकते हो. सो आई होप कि आपको ये समरी समझ में आई हो एंड थैंक यू सो मच.